الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا۔ احباب، آپ کو اس نئے سیریز میں جو کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اس کورس میں۔ انشاءاللہ تعالی یہ جو مہینہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ میلاد النبی کی خصوصیت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1500 سال جو ہے وہ ان کی ولادت کو گزر چکے ہیں۔ تو 1500 سال جو ہے یہ میلاد النبی ہے، تو اس کی خوشی دو بالا ہے، زیادہ ہے، اور روشنیاں زیادہ ہیں، خوشیاں زیادہ ہیں، اور فرحت اور سرور بہت زیادہ ہے پوری دنیا میں۔ اس وقت جو ہے وہ 1500 جو ہمارا فگر مکمل ہوا ہے، اس وجہ سے بھی بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام کیا جائے، عشق رسول پہ بات کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بات کی جائے، آپ کے صبح و شام پہ بات کی جائے، آپ کے خصائص پہ، آپ کے معجزات پہ بات کی جائے۔ تو پوری دنیا میں، چاہے وہ انگلش میں ہے، عربک میں ہے، فارسی میں ہے، اردو، پشتو، ساری زبانوں میں جو ہے علماء کرام لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے فروغ کے لیے جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں۔ تو ہم نے بھی اس سلسلے میں اپنا حصہ ڈالنا چاہا ہے، اور وہ ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، اور کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پاک ہے اس کو سال بسال پڑھنے کی کوشش کریں، یا پھر ایسا کریں گے کہ ہم مختلف موضوعات پر انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ ہیں۔ تو سب سے پہلے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آج کے موضوع کے حوالے سے، وہ ہے سیرت رسول کی اہمیت، کہ سیرت رسول ہم کیوں پڑھیں، اس کی کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، اور اس کے دین میں کیا اہمیت ہے۔ کیا دین کے شریعت میں سیرت رسول پڑھنے کی کوئی بھی فضیلت ہے، کوئی اہمیت ہے یا ضرورت ہے، اور اس کا درجہ ہے کہ نہیں؟ کیا یہ سیرت رسول حجت ہے دین میں، کوئی دلیل ہے؟ اس پہ بات کرنا چاہیں گے شروع میں، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ بات کریں گے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تمام مخلوقات سے افضل ہیں۔ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دوسرا حصہ ہوگا ہماری گفتگو کا۔ جو پہلا حصہ ہے سیرت رسول کی اہمیت اور دین میں اس کا مقام، یہ خالصتاً آپ کے لیے رکھا ہے، صرف اس لیے کہ آپ جو لوگ ہیں، آپ لوگ بحیثیت طالب علم جو ہے یہاں پر موجود ہیں، ٹھیک ہے، طالب علم کی حیثیت سے یہاں پر ہیں، نہ کہ عام اجتماع ہے، اور جس میں آپ جو ہے وہ محظوظ ہوتے ہیں کہ بھئی ذرا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں، کچھ نعت سنیں، کوئی خوبصورت باتیں ہوں، کوئی ان کی تعریف ہو، مدح سرائی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو بطور طالب علم سمجھیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے، ایسے آپ سمجھیں اس بات کو، جس کی بات جو بات جس موضوع کی طرف میں چاہتا ہوں کہ اس کی اہمیت جو ہے وہ آپ کے دلوں میں جو ہے جاگزین ہو، تو آپ نے اس کو بطور طالب علم اس کو لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسرا جو حصہ ہوگا وہ پھر عام ہوگا، وہ سب کے لیے ہوگا۔ تو وہ دانائے سبل ختم رسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ یہ حضرت علامہ محمد اقبال کے الفاظ تھے، جس سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی ہے۔ رحمت للعالمین، سید الاولین والمرسلین، امام الانبیاء، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، آپ کے ذات گرامی ایک ایسی کامل، اکمل اور عظیم ترین شخصیت ہے کہ آپ کی جامعیت اور کاملیت اور عالمگیریت نے کائنات کے ہر ذرے کو، ہر گوشے کو، ہر شعبہ حیات کو متاثر کیا ہے۔ یعنی آپ آئے تو آخرین ہیں، بعد میں آئے ہیں، لیکن آپ کا اثر جو ہے وہ تا قیامت رہے گا۔ عبادات ہو کہ معاملات ہو، اخلاقیات ہو یا معاشرت ہو، عدالت ہو، سیاست ہو، ریاستی احکامات ہوں یا سفارتی تعلقات ہوں، جنگی تدابیر ہوں یا گھریلو مسائل ہوں، معاشرے میں
रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफात कामिल और अकमल नमूने के तौर पे सामने आती है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा हयात इंसानी के तमाम गोशों पर मुहित दिखाई देती है। अहद रसालत से कबल हयात तय्यबा में एक अमानतदार ताजिर दिखाई देगा, बेहतरीन शोहर दिखाई देगा। ये कबले ऐलान नबूवत बेहतरीन ताजिर, अमानतदार ताजिर, सादिक और अमीन ताजिर, बेहतरीन शोहर, अच्छा दोस्त, यतीमों का वाली, बेवाओं का, मसाकीन का गमखार, आप अमानत और सदाकत के अलमबरदार आपको दिखाई देंगे। इसी तरह ऐलान नबूवत के बाद आप एक अजीम शान दाई बनते हैं। गज़वात और सराया में एक जबरदस्त कमांडर और सिपहसालार दिखाई देते हैं। रियासत मदीना का मायनाज सरबराह दिखाई देते हैं। एक कामयाब जज, एक कामयाब मुअल्लिम, एक कामयाब रहबर, एक कामयाब सियासी कायद की जात गरामी आप में दिखाई देती है। इसीलिए सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का दाइमी मौजज़ा और अल्लाह ताला की हिकमत बालिगा है। क्या ये सीरत नबवी का एजाज नहीं है कि आपकी जुबान का एक एक हर्फ, हरकत और सकनात की एक एक अदा, आपकी जलवत और खलवत, आपके शब रोज, आपके खतो खाल का अक्स आज भी मौजूद है हमारे ज़माने में। और आपकी हयात तय्यबा की एक एक कैफियत कुतुब सीरत के औराक में बितफसील महफूज है, मामून है। इसीलिए हम सीरत रसूल को पढ़ेंगे। ये ज़रूर आप इसको समझे, इसकी अहमियत को समझिएगा, ठीक है। सीरत का ये जो इल्म है, ये अलग से अपना एक मखसूस इसका मुकाम है सीरत रसूल का। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि कुरान मजीद के लिए सीरत रसूल को समझना बहुत ज़रूरी है। आपने कुरान मजीद को समझना है ना, तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा उठाया है, और इसी वजह से अल्लाह ताला ने सीरत रसूल की भी हिफाजत फरमाई है। सीरत, पहले ज़रा समझिए इस बात को, थोड़ी सी मैं ज़रा ग्रामर की तरफ और समझ लें कि इस्तिलाहात की तरफ जा रहा हूँ कि ये सीरत किसे कहते हैं। सीरत का लफ्ज़ जब आप सुनते हैं ना सीरत, तो ये लफ्ज़ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ठीक है, और इसका मतलब होता है हालत, रवैया, तरीका, चाल, किरदार, आदत और खसलत वगैरह वगैरह। इस माने में सीरत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। उर्दू में भी आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, आप कहते हैं तामीर सीरत, सीरत साजी, पुख्तगी सीरत, नेक सीरत, बद सीरत, हुस्न सीरत, ये अल्फाज आपको उर्दू में भी मुस्तअमल दिखाई देते हैं। ये जो लफ्ज़ सीरत है, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी जो अहम तरीन शख्सियात हैं उसके हवाले से भी आप इसका जिक्र करते हैं। जैसे आप कहते हैं सीरत आयशा सिद्दीका, सीरत खुलफाए राशिदीन वगैरह वगैरह आप कहते रहते हैं, ठीक है। कुरान मजीद में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ये ज़रा ज़हन में रखिएगा, ठीक है, बतौर तालिब इल्म याद रखिएगा कि सीरत का जो लफ्ज़ है कुरान मजीद में मौजूद है, लेकिन वो इस मानी में नहीं है जिस माने में हम लेते हैं, ठीक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो असा थी, अल्लाह पाक ने फरमाया इसको फेंक दे आप, हम इसको दोबारा अपनी पुरानी हालत पर ले आएंगे। ये जो पुरानी हालत का जिक्र है ना, इसमें अल्लाह पाक ने सीरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और फरमाया सनुईदुहा सीरतहल ऊला, हम तुम्हारी असा को दोबारा अपनी हकीकत में ले आएंगे वापस, इसको सांप बनने दें, इसको फेंकें आप। तो यहाँ पर सीरत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। सीरत का वैसे लड़कियों का नाम भी सीरत रख सकते हैं, बहुत प्यारा नाम है सीरत। सीरत फातिमा, कितना प्यारा नाम हो जाएगा सीरत फातिमा। कभी कभी मुरक्कब नाम जो है ना वो आपको फायदा देते हैं। तो सीरत फातिमा कितना प्यारा होगा, सीरत आयशा बहुत प्यारा नाम है। अच्छा, तो कुरान मजीद में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। बाज़ दफ़ा ये जो लफ्ज़ है सीरत का, ये जो सीरत लिखने वाला होता है ना उसकी तरफ भी निस्बत हो जाती है। जैसे हम कहते हैं सीरत इब्ने हिशाम या सीरत इसहाक, ऐसे बहुत सारे नाम हमारे सीरत सीरत के नाम से हमारे यहाँ इस्तेमाल होते रहते हैं। अखबारात में भी आप सुनते देखते होंगे कि जलसे सीरत है, सीरत नबी कॉन्फ्रेंस हो रही है, मकालात सीरत है,
इस तरह के बहुत सारे नाम, सीरत नंबर आपका इस्तेमाल होता है। तो सीरत का लफ्ज आपने बहुत दफा सुना होगा, ठीक है। तो ये तो लफ्ज हो गया, ठीक है। अच्छा, हमारे जो फुकहा है और मुहद्दिसीन है, इन्होंने भी सीरत पे लिखा और अपनी किताबों का नाम भी रखा। यानी सही बुखारी के अंदर भी आपको एक सीरत का बाब दिखाई देगा, और उस वक्त सीरत का नाम था मगाजी। यानी कि काफिरों से जो लेन देन है, उन पे रहम करना है कि उनको मारना है, उनसे जिजिया लेना है या उनके साथ क्या ताल्लुक करना है, इसको मगाजी बोलते थे कि रसूलुल्लाह ने उनके साथ क्या किया। ये बात समझे आप कि सीरत का लफ्ज अब शुरू में क्या था। शुरू में, यानी मैं आपको पहले 3 सदियों का बता रहा हूं, तो इसका जो सीरत का जो लफ्ज इस्तेमाल होता था, इसको याद रखिए, मगाजी का लफ्ज इस्तेमाल होता था, मगाजी, ठीक है। अब देखो ना, कितना अजीब बात है कि आजकल कहते हैं वो मिलाद का लफ्ज कहाँ से ले आया। भाई मिलाद का लफ्ज नहीं है, मिलाद का लफ्ज तो सैकड़ों किताबों में है, लेकिन ये जो आप लोगों ने सीरत का लफ्ज निकाल लिया है, सीरत का लफ्ज भी कहाँ से निकाला है। सीरत का लफ्ज भी ऐसे ही जो है वो बाद में उसको जो है परवान चढ़ा है, जैसे मिलाद का लफ्ज बाद में चढ़ा है बहुत ज्यादा। लेकिन मिलाद का लफ्ज आपको कुरान में, हदीस में आपको हर जगह दिखाई देगा आपको। इस तरह सीरत का लफ्ज भी है, इसलिए हम कहते हैं कि ये सब जायज है। आप चाहे सीरत नबी कॉन्फ्रेंस करवाएं, या फिर आप जो है वो मिलाद नबी कॉन्फ्रेंस करवाएं, आप खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करवा दें, आप जैसे आपकी मर्जी हो, सब जायज है, सब कुछ जायज है, सब जायज है। जो कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है ना, वो जायज है आपके लिए। बस ये नहीं देखना कि इसका हुक्म कहाँ है और ये कहाँ पे आया है, ये सवाल ही गलत है, सवाल ही गलत है। तो ये आप सही बुखारी में देखेंगे मगाजी लिखा होगा, मुस्लिम शरीफ में देखेंगे लिखा होगा सीरत, शेर वल जिहाद लिखा होगा, फतुल बारी में भी आपको दिखाई देगा मगाजी व शेर दिखाई देगा। इस तरह अस्सेर लिल औज़ाई किताब का नाम है, अस्सेर सगीर, अस्सेर अल कबीर, वो इमामों के किताबों के नाम हैं, शुरू के 3 सदियों का बता रहा हूं मैं आपको। तो ये लफ्ज भी इसी तरह चढ़ा है, जैसे बाकी उलूम हम पढ़ते हैं। देखो ना, मदरसा चाहे वहाबियों का हो, तबलीगियों का हो, देवबंदियों का हो, सुन्नियों का हो, वो शियों का हो, आपको दिखाई देगा कि वो अरबी जुबान सीख रहे होते हैं, सर्फ और नहव। ये सारे उलूम तो बाद में पैदा हुए हैं। तो इसी तरह तसव्वुफ का इल्म भी बाद में जो है वो फैला है, वो सब इस्लामी है, ये सब इस्लामी है। इसी तरह मंतक बाद में आई है आपके यहाँ बलागत बाद में आई है, लेकिन इसको पढ़े बगैर न कुरान को समझ सकते हैं, ना ही आप दीन को समझ सकते हैं। इसलिए ये जायज है, बल्कि मुस्तहसन है, पढ़ना चाहिए, इसी में फजीलत रखी गई है। तो इसी तरह ये लफ्ज मीलाद और इसी तरह ये सीरत का लफ्ज भी बाद में परवान चढ़े हैं और ये अल्फाज बाद में आए हैं। अब आते हैं शरीयत में सीरत का माना क्या है। ये मैंने लुग़वी आपको बताया कि लुग़वी लिहाज से सीरत का माना क्या है। अब बतौर तालिब इल्म ही पहले हिस्से का आपको बता रहा हूँ कि सीरत को शरीयत में हम जब बयान करेंगे तो सीरत का क्या बयान करेंगे कि सीरत किसे कहते हैं। सबसे जो खूबसूरत तारीफ बयान की है ना, वो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान की है, बड़ी प्यारी और बहुत आसान। आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद गरामी से जो भी मुताल्लिक है, रसूलुल्लाह की विलादत पाक से लेकर आपके दुनिया से तशरीफ ले जाने तक, उन सब की तफसील को इस्लामी उलूम और फनून की इस्तिलाह में सीरत कहते हैं। कितनी प्यारी तारीफ की है शाह साहब मुहतरम ने। शाह साहब फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह की विलादत से लेके आपके विसाल तक जो कुछ भी आपने किया, आपकी सिफात हैं, आपके हालात जिंदगी हैं, आपके अखलाक हैं, आपकी आदात हैं, आपके मोजज़ात हैं, वो सब का नाम सीरत है। वाह 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 वाह, सीरत। इस्लामी उलूम और फनून में सीरत का लफ्ज सबसे पहले रसूलुल्लाह के उस तर्ज अमल के लिए इस्तेमाल किया गया जो आपने गैर मुस्लिमों से मुआमला करने और जंगों में सुलह या मुआहिदात के मामलात को जो आपने अपनाया था ना तरीक़ेकार, उसको सीरत कहते थे। यानी सीरत के से पहले भी मगाजी का लफ्ज था, मगाजी का लफ्ज, ठीक है। तो बाद में ये सीरत हम लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और आदात और मोजज़ात और शमाइल और सिफात का नाम रख दिया है, ठीक है। जो आजकल सीरत नबी कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें हम लोग यही बातें करते हैं कि रसूलुल्लाह ने क्या किया। तो सीरत रसूल के माखिस क्या हैं, ये भी बतौर तालिब इल्म आपने समझना है, ठीक है। आपने तारीफ समझ ली है, अब इसके माखिस को समझें कि हम सीरत रसूल को कहाँ से लेते, कहाँ से हैं। जो सबसे पहले हम लेते हैं ना सीरत रसूल को, वो लेते हैं कुरान मजीद से।
सैयदा आयशा से किसी ने पूछा कि रसूलुल्लाह के अखलाक क्या थे, आपने फरमाया कि कुरान नहीं पढ़ा क्या? कुरान ही रसूलुल्लाह का अखलाक है। एक कुरान लिखा हुआ है और एक कुरान चलता फिरता है मदीना मुनव्वरा में। तो सबसे पहला माखज़ जो है, वो माखज़ वो है कुरान करीम। कुरान मजीद रसूलुल्लाह की सिफात का, सीरत का जिक्र हमें वहां से मिलता है कि आप अय्युहल मुज़म्मिल कह के बुलाते हैं, अय्युहल मुद्दस्सिर के नाम से बुलाते हैं, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा से बुलाते हैं, अलम यजिदका यतीमन से बुलाते हैं, और अलम नशरह से बुलाते हैं, इन्ना अतैनाकल कौसर से बुलाते हैं। और आपके शब रोज़ के बारे में हमें सबसे पहले जो पता चलता है वो कुरान मजीद से पता चलता है। रसूलुल्लाह के अक़वाल, अफ़आल और तकारीर, तकारीर से मुराद खामोशियाँ हैं, किसी काम पे जो खामोश आप रह गए। शमाइल और खसाइल खुश उसलूबे से जमा कर दिए गए हैं, ये सारा कुछ जमा कर दिया गया है। सही बुखारी से लेकर अब बाकी सियासत की किताबों में बाकायदा तौर पे जिक्र है इनका, बाकायदा तौर पे। और ये जो सुनन है ना, सुनन जिसे कहते हैं, सुनन तिरमिजी, जैसे आप तिरमिजी ने स्पेशली शमाइल तिरमिजी के नाम से रखा हुआ है, शमाइल पूरे जिक्र कर दिए हैं। सिर्फ नाते हैं, सिफात हैं, बस नसर में रसूलुल्लाह की नाते हैं, वो पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। हर मुसलमान को शमाइल तिरमिजी अपने घर में रखना चाहिए, हर मुसलमान को। इसी तरह सुनन बेहकी को देख लें, मुस्नद इमाम अहमद को देख लें, तो इसमें उन्होंने बाकायदा से लिखा है। इमाम बुखारी ने एक अलग से किताब भी लिखी है अल अदबुल मुफरद के नाम से, उसमें भी आपको यही चीज़ें दिखाई देंगी, आपके अकवाल, आपके अफ़आल, आपके शमाइल और खसाइल, ये सब का जिक्र मिलेगा आपको। इसी तरह दलाइल नबूवत और मोजज़ात की किताबें भी हैं, जैसे दलाइल नबूवा है, खसाइसुल कुबरा है इमाम सयूती की, ये किताब भी सबके पास होनी चाहिए। लेकिन ये किताबें ज़रा बड़ी हैं, तो अब जदीद किताबें आ गई हैं, उसकी तरफ भी आप लोग आ सकते हैं। इस तरह दलाइल नबूवा भी है, इमाम बेहकी की भी है, इमाम अबू नुअयम अस्बहानी की भी है अलग से। इसी तरह सुबुलुल हुदा व रशाद, ये भी बड़े बेहतरीन सीरत की किताब है, और इससे लोग सीरत लिख रहे हैं। ये जो ज़ियाउन नबी है ना, पीर करम शाह अल अज़हरी साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, इस सीरत को जो अक्सर हिस्सा है वो सुबुलुल हुदा से लिया गया है। तो इस तरह बहुत सारी किताबें हैं, कुतुब सीरत हैं, बहुत सारी किताबें हैं। अच्छा, ये हदीस और सीरत का कोई फर्क है क्या? हाँ जी, फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। क्या है? हदीस में असल में आपकी बहस जो होती है अक़वाल और अफ़आल रसूलुल्लाह पर होती है, और ज़ात और शमाइल जो रसूलुल्लाह के हैं उसको ज़िम्नन जिक्र किया जाता है, ज़ेल में जिक्र कर दिया जाता है। ये हदीस का एक खासा है। लेकिन जब सीरत पढ़ते हैं तो आपकी ज़ात और आपके शमाइल, आपके आपके अखलाक, वो खुसूसी तौर पर जिक्र किए जाते हैं, बस ये फ़र्क है। ये बतौर तालिब इल्म आपको बता रहा हूँ, आपको ये चीज़ें सारी समझनी चाहिए, ठीक है, बतौर तालिब इल्म। इसी तरह सीरत की अहमियत क्या है, ये सीरत जो हम पढ़ते हैं, सीरत की अहमियत क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। फिर मैं आपको जो है वो एक जर्नल जो है, आपको आपको खुशी के लिए, आपकी आपके दिल को सुकून पहुंचाने के लिए रसूलुल्लाह की कुछ सिफात जिक्र करता हूँ, ठीक है। पहले ये जरा समझिएगा कि सीरत की अहमियत क्या है। देखें, हिदायत का रास्ता क्या अल्लाह पाक ने बताया कुरान मजीद में, कि रसूलुल्लाह की इत्तिबा करो। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मेरे हबीब, इन लोगों को बता दो जो मुझसे मोहब्बत का दावा करते हैं, उनको बता दें कि मेरी इत्तिबा करें, मेरी पैरवी करें, मेरे कदम पे कदम रखें, मुझे फॉलो करें पूरी तरह से, मोहब्बत और इश्क के साथ, यकीन के साथ मुझे फॉलो करें, इताअत करें, मेरी मेरी इताअत करें। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरी मोहब्बत का दावा करने वालों, रसूलुल्लाह की इत्तिबा करो, रसूलुल्लाह के पीछे चलो। अब रसूलुल्लाह के पीछे कैसे चलें? हम 1500 साल के बाद आए हैं, 1500 साल के बाद, या रसूलुल्लाह, हम 1500 साल के बाद आए हैं, कैसे कैसे करें? हम तो शुक्रगुजार हैं इन 1500 साल में जितने भी उलमाए कराम गुजरे हैं, मुहद्दिसीन गुजरे हैं, फुकहा गुजरे हैं, ये नेक लोग गुजरे हैं जिन्होंने दीन को महफूज किया अपने कलम के जरिए से। वाकई ये बात सही है कि शहीदों के खून से ज्यादा उलमा की सियाही का जो है वो उसकी कदर ज्यादा है, उसका दर्जा आला है। उलमा की सियाही का, जिन्होंने हम तक इस दीन को पहुंचाया है, रसूलुल्लाह के शब रोज को पहुंचाया है, अल्लाह ताला उनको जजाए खैर अता फरमाए। वो सब आला लोग थे, सारे आला लोग थे। इन 1400 1450 सदियों में जितने भी लोग आए, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, पाकीज़ा लोग थे, आला अखलाक वाले लोग थे, जिन्होंने अपनी जिंदगियों को फना कर दिया दीन की सरबलंदी के लिए, दीन की हिफाजत के लिए। उन्होंने सीरत को भी लिखा,
اللہ ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए सबके। तो उन्होंने हम तक ये रसूलुल्लाह की सीरत को पहुंचाया। अब हम इत्तिबा कर सकते हैं रसूलुल्लाह की, बल्कि जिंदगी के हर शोबे में जो है रसूलुल्लाह की हम इत्तिबा कर सकते हैं। मैं अगर तालिब इल्म हूँ तो मैंने कैसे तालिब इल्मी का दौर गुजारना है, मैं उस्ताद हूँ तो मैंने कैसे उस्ताद बनना है, मैं बाप हूँ तो कैसा बाप होना चाहिए, मैं शोहर हूँ तो कैसा शोहर होना चाहिए, मैं बेटा हूँ तो मुझे कैसा बेटा होना चाहिए, मैं दोस्त हूँ किसी का, भाई हूँ किसी का तो मुझे कैसा होना चाहिए। ये सब आपको दिखाई देगा। आप मुझे सिपहसालार हूं, मैं, मुझे निगरान बना दिया गया है, मैं मुझे ताजिर बनाया गया, मुझे कारोबार करना है, मुझे मुआशरे में रहना है, समाज में रहना है, मुझे कैसे करना होगा, मुझे ये सब कुछ रसूलुल्लाह की सीरत ने बता दिया है। मेरे रास्ते को रोशन कर दिया है। सिरात मुस्तकीम मेरे लिए बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल वाज़ेह। अल्लाह तरकना अलल महज्जतिल बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिकुन। अल्लाह के रसूल ने हम लोगों को सफेद खूबसूरत रास्ते पे छोड़ा हुआ है, सीधे रास्ते पे छोड़ा हुआ है, और इससे सरकशी नहीं करता, दाएं बाएं नहीं जाता कोई भी सिवाय गुमराह आदमी के। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ऐसे रास्ते पे छोड़ा जो बिल्कुल सीधा है और रोशन है। वो सीरत रसूल का रास्ता है। सीरत का इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। इसीलिए सआदत दारैन, ये लफ्ज समझे आप, सआदत दारैन का मतलब होता है दो घरों की खुशबख्ती, इस दुनिया के घर की और आखिरत के घर की खुशबख्ती जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में है, रसूलुल्लाह की लाई हुई हिदायत और रहनुमाई में है। सहाबा कराम को कुरान करीम की सूरतों की तरह इस्लामी गज़वात के वाक़ियात याद करवाए जाते थे। याद रखें, मोहम्मद बिन साद बिन अबी वक़ास, साद बिन अबी वक़ास के बेटे हैं, वो फरमाते हैं कि हमारे वालिद यानी साद बिन अबी वक़ास, हमारे वालिद हम लोगों को मगाजी यानी गज़वात और सराया, यानी सराया वो होते थे जिसमें रसूलुल्लाह खुद शरीक नहीं होते थे लेकिन किसी को भेज देते थे, तो उसकी तालीम दिया करते थे हमारे वालिद। समझाते थे हमें, एक एक वाकया सुनाते थे और तालीम देते थे और कहते थे, ए बेटो, ये तुम्हारे आबाओ अजदाद का शर्फ है, इज्जत है, तुम लोग इसको जाया ना करो, इसको याद रखो, यानी सीरत को याद रखो। मदीना मुनव्वरा में मगाजी की मशहूर दरसगाह अब्दुल्ला इब्न अब्बास की थी। ठीक है, दरसगाह थी जहां पर आपके सीरत को पढ़ाया जाता था। इसमें इल्म मगाजी के लिए बाकायदा तालीम मुकर्रर की गई थी और उनके पास एक ऊंट के वजन के बराबर यादाश्तें थी। एक ऊंट पे लादते थे सीरत की किताबों को, सीरत के वाकयात को, एक ऊंट के बोझ के बराबर। मगाजी रसूल के सबसे पहले मुदव्विन हजरत उर्वा जुबैर बिन अवाम, हदीस फिक मगाजी के बहुत बड़े आलिम थे। वो हजरत आयशा के भांजे भी थे और बेटे भी थे, मुंह बोले बेटे भी थे। इमाम बुखारी ने फतेह मक्का की तफसीलात हजरत उर्वा बिन जुबैर से रिवायत की है। ठीक है, इमाम बुखारी ने, याद रखें, उन्होंने हमें वाकयात सुनाए हैं। उनकी मगाजी पर किताब है, किताबुल मगाजी। सईद बिन मुसैयब मरवियात सीरत का जखीरा इमाम तबरी ने अपनी तारीख में उनसे रिवायत किया है। सीरत मगाजी रसूल को मुदव्विर करने वाली दूसरी बड़ी शख्सियत है अबान बिन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। अल्लाह अल्लाह, क्या खूबसूरत नाम है ये, अबान। ये नाम याद रखें, अबान सुहाबी का नाम भी है, ताबी का नाम भी है। अबान बिन उस्मान बिन अफ़्फ़ान, उन्होंने 86 हिजरी तक किताबुल मगाजी मुकम्मल कर ली थी। इमाम मालिक ने आपसे रिवायत ली है, आप यानी इमाम मालिक के उस्ताद हैं। इसी तरह आपकी मरवियात तबक़ात इब्न साद, तारीख़ तबरी, तारीख़ याकूबी में महफूज है। उम्मे अमर बिन्त जुंदब, खातून, ये खातून है, खातून सीरत निगार हैं, खातून है उम्मे अमर। अल्लाह अकबर, खवातीन का बहुत बड़ा दर्जा है। हमें सबसे ज्यादा किसने दीन पहुंचाया है? खातून ने पहुंचाया है। सबसे पहले ईमान कौन लाई? खातून लाई। सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा। सबसे ज्यादा बातें तो रसूलुल्लाह की उन्होंने हमें बताई हैं। आपके शब रोज, आपके घर के हालात, आपके सफर और हजर के वाकयात सैयदा आयशा ने हमें बताए हैं। खवातीन को जागते रहना चाहिए, दीन में अपना हिस्सा अदा करना चाहिए सारी खवातीन। हजरत अबू हुरैरा के शागिर्द हैं वहाब बिन मुनब्बह,
उन्होंने सीरत मगाजी की रिवायात को जमा किया अबू हुरैरा से। इनकी रिवायात इब्ने इसहाक ने भी रिवायत की, इब्ने कुतैबा ने भी रिवायत की, इमाम तबरी ने भी रिवायत की है। इमाम बुखारी जैसे अजीम तरीन शख्सियत ने बाब सीरत में मुस्तनद तरीन इमामान उरवा बिन जुबैर, इमाम ज़ुहरी, मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन शहाब के अलावा इब्न इसहाक और मूसा बिन उक़बा की रिवायात का जिक्र भी तराजुम अबवाब में किया है। मोहम्मद बिन शहाब ज़ुहरी बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। अल्लाह अकबर, ये आखिरी ताबीत है। मरवान बिन हकम और इनके बेटा अब्दुल मालिक बिन मरवान ने उरवा बिन जुबैर से और अबान बिन उस्मान से सीरत नबवी का काम लिया। ये लोग हैं, कोई ये न कहे आपको कि ये इल्म भी बिदअत है, और ऐसा नहीं भाई, ये सहाबा कराम है, ये ताबईन है। उन्होंने सीरत की निगारी का काम बड़ी हुस्न और खूबी के साथ किया और बड़े एहतमाम के साथ किया। हजरत अली बिन हुसैन यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उन्होंने अपनी यादाश्त के लिए सीरत और मगाजी का मजमुआ खुद तैयार किया और रोजाना कुरान मजीद की तिलावत के साथ उसे भी तिलावत करते थे। ये नुस्खा दूसरों तक नहीं पहुंच सका था, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास मौजूद था। आपको समझ आ गई है ना? ये बहुत जरूरी है सीरत रसूल को समझना और उसको पढ़ना। इसी तरह सीरत रसूल की अहमियत के बारे में कुरान मजीद ने भी हमें जो गाइडेंस दी है ना, वो भी बहुत अहमियत के हामिल है। अल्लाह पाक ने फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए मेरे हबीब आपके अखलाक वो बुलंद तरीन दर्जे पर फायज है। और फिर फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़ात बेहतरीन नमूना है हर उसके लिए जो अल्लाह से मुलाकात और आखिरत की उम्मीद रखता है और अल्लाह का ज्यादा से ज्यादा जिक्र करता है उसके लिए। तो रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ना चाहिए, उनका उनकी हयात पाक को पढ़ना चाहिए। अगर किसी के लिए कोई उसवे हसना है तो वो सिर्फ रसूलुल्लाह की ज़ात गिरामी है। रसूलुल्लाह की इक्तिदा और इत्तिबा का अव्वलीन तकाजा यह है कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों में आपकी सिफात और अखलाक, आपकी नबूवत के दलाइल और खसाइद की मारिफत हासिल की जाए। जो शख्स आपके अखलाक और वासिफात को जानेगा वही आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार होगा ना, वही आपकी इत्तिबा कर सकेगा। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम ज़ादुल मआद में लिखते हैं कि सीरत नबविया का इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज है, क्योंकि सआदत दारैन रसूलुल्लाह की लाई हुई हिदायत और रहनुमाई में मौजूद है। सीरत नबवी रसूलुल्लाह और सहाबा कराम के जज्बा ईमान और यकीन के वाक़ियात से लबरेज है, जो उनसे आलाए कलिमतुल्लाह की सरबलंदी के लिए ज़हूर हुए। इन दिलावेज वाक़ियात को पढ़कर और सुनकर मोमिनीन के अज़ाइम की क़ुव्वत में इजाफा होता है, दीन हक के दिफा का जज्बा मुस्तहकम होता है, दिलों की राहत और सुकून और इत्मीनान मिलता है इसी सीरत नबवी को पढ़ने से। अल्लाह अकबर। मैं आपको बताऊं, मैं हकीकत बता रहा हूं मैं आपको अहबाब, कि जो सीरत रसूल को पढ़ेगा और वो मुसलसल पढ़ता रहेगा, मुसलसल पढ़ता रहेगा, आप याद रखें कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ होगा। रसूलुल्लाह की ज़ियारत उसको नसीब होगी, ख्वाब में भी और जागते हुए भी हो सकता है। अगर आप बुलंदी ये पाकीज़गी पर है ना, आपका बदन पाक है, आपके कपड़े पाक हैं, आपकी रूह पाक है, दिल पाक है। हमारे उस्ताद हैं मुफ्ती अली जुम्मा साहब रहमतुल्लाह अलैह, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ताला उनसे राजी हो, अल्लाह ताला उनकी उम्र को बढ़ाए। मैं उनकी शख्सियत आला हयात है वो उनकी ज़ात गरामी, उन्होंने खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हालत बेदारी में देखा है और उस वजह से कि वो सीरत का मुसलसल जिक्र करते हैं, मुसलसल पढ़ते रहते हैं, मुसलसल हदीस को पढ़ते रहते हैं, मुसलसल सीरत को पढ़ते हैं, तो आप फिर उसी ख्याल में रहते हैं ना, फिर आपके वही ख्यालात पुख्ता हो जाते हैं और आपके दिल में वो जो है वो जज्बा रहता है। जब आप सोते हैं तो फिर आप वही दीदार करते हैं, मदीना की गलियों में रहते हैं। मैं इस पे बहुत अच्छा एक वाक्य सुनाता रहता हूँ, अक्सर आप सबको पता भी होगा। वो वाक्य बड़ा मशहूर है, बड़ा मशहूर वाक्य है कि जिसमें एक मुरीद अपने शेख से कहता है कि हजरत मैं आपकी तरह ही वजीफे करता हूँ, आपकी तरह ही जो है वो मैं जैसे आपने मुझे वजीफे दिए हुए हैं, मैं आपके दिए हुए वजीफों को मैं भी पढ़ता हूँ। कभी ज़ियारत नसीब नहीं हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो पीर साहब ने कहा कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम मेरे मुरीद हो यार, ये तो कोई बात ही नहीं है, आपको आज रात ही करवा देते हैं, ज़ियारत करवा देते हैं आज ही। तो हजरत साहब वो बड़े खुश हो गए मुरीद कि ये तो बड़ा अच्छा हो गया। तो पीर साहब ने कहा कि रात हम नमाज पढ़ेंगे और खाना तुमने मेरे पास खाना है, खाना मेरे पास खाना है, और इंशाअल्लाह ताला ज़ियारत आज आपको जो है वो उसका नुस्खा मैं आपको दे देता हूँ आज रात।
تو جب عشاء نے نماز پڑھی ہے، اس کے بعد کھانا کھایا ہے، تو مرید صاحب جب حاضر ہوئے کھانے پہ، تو کھانا جب کھایا تو کھانے میں نمک بہت زیادہ تھا، نمک بہت زیادہ تھا، تو وہ اب ادب کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکے کہ حضرت نے بڑی محبت سے مجھے دعوت دی ہے، تو آپ نے کیا کیا کہ کھاتے رہے، مرید صاحب کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے، اور ہوا کیا کہ کھایا بھی خوب، چونکہ پیر صاحب کے گھر میں تھے، اور پیاس بھی بہت لگی تھی۔ پیر صاحب نے کہا اچھا یہ کھانا کھا لو لیکن پانی نہیں پینا، پانی نہیں پینا، تو نے یہ نسخہ ہے، تمہارا علاج ہے، پانی نہیں پینا۔ تو بہت پیاس لگ گئی، نمک کی وجہ سے پیاس بہت زیادہ لگی، جب بہت پیاس لگی تو اسی حالت میں سو گیا وہ، اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ رسول اللہ کی زیارت ہوگی، لیکن پیر صاحب نے تو وعدہ کیا تھا کہ تجھے جو ہے ملے گا وہ نسخہ ملے گا تمہیں۔ اچھا صبح جب نماز ہوئی، نماز میں ملاقات ہوئی پیر صاحب سے، تو انہوں نے پیر صاحب نے پوچھا بتاؤ پھر کیسا لگا نسخہ؟ تو انہوں نے کہا حضرت مجھے تو کوئی زیارت نہیں ہو سکی، میں نے تو کوئی زیارت نہیں کی۔ تو پیر صاحب نے پوچھا کیوں زیارت نہیں کی، کیا ہوا، تم نے کیا دیکھا خواب میں؟ تو انہوں نے کہا میں نے تو خواب میں دیکھا کہ پانی ہے، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، اور میں درمیان میں ہوں۔ تو حضرت صاحب نے کہا خواب میں پانی دیکھا، کیوں پانی دیکھا پتہ ہے؟ اس لیے پانی دیکھا کہ تجھے پانی کی طلب تھی، تیرا دل جل رہا تھا، تجھے پانی کی ضرورت تھی بہت زیادہ، جب تجھے پانی کی شدت سے اس کو پانے کی تمہیں چاہت تمہاری اتنی بڑھ گئی، اور اسی خیال میں تم سو گئے رات کو کہ تمہیں نیند تک نہیں آ رہی تھی، اور پانی پانی کرتے کرتے تم سو گئے، تو تمہیں خواب میں پانی ہی نظر آنا تھا۔ اگر تمہارا صبح و شام یہی ورد ہو، رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ، گنبد خضرا کا تصور ہو، آپ کے اخلاق آپ کی سیرت تمہاری نگاہوں میں ہو، دل میں رچی بسی ہو، ہر وقت رسول اللہ کرتے رہو، تو تم دیکھو گے کہ ہر رات تمہیں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ یہی نسخہ دینا چاہتا تھا میں کہ تمہارا شوق اور طلب وہ اس قدر ہونا چاہیے جس طرح تمہیں پانی کی طلب ہوتی ہے، کس قدر ہونا چاہیے، جو تمہارا عشق اتنا بڑھ جائے گا تو آپ دیکھو گے کہ ہر رات ہی تمہیں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوگی جیسے تمہیں پانی نظر آیا ہے۔ تو احباب جب ہم لوگ سیرت رسول کو پڑھتے ہیں نا، تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا اتنے شخصیات سے ملاقات ہوئی، اتنے پاک پاک لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، بہت سارے لوگوں سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی، تو اتنے نیک اور پاک لوگوں سے ملاقات ہوئی، اسی وجہ سے جو ہے وہ میں نے دیکھا، ان کی زندگی کو دیکھا، تو یہی پایا کہ وہ لوگ ہم وقت تصور گنبد خضرا میں رہتے ہیں، ہر وقت وہ گنبد خضرا ان کی نگاہوں میں رہتا ہے، صبح و شام اسی تصور میں رہتے ہیں، تو پھر وہی اچھے خواب دیکھتے ہیں، ان کو اچھے اچھے خواب دکھائی دیتے ہیں، انہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور وہ نیک پاکیزہ ارواح کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہم سب کے لیے اس میں جو ہے نا ایک موٹیویشن ہے ہم سب کے لیے کہ ہم لوگ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے رہیں۔ آپ کے پاس ایک کتاب ہونی چاہیے جس میں سیرت رسول ہو، صرف آسان اردو میں لکھی گئی ہو، یہ سیرت بہت ضروری ہے، ہر ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے، آپ کے چاہے کسی بھی شعبے سے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، طالب علم ہیں، آپ استاد ہیں، آپ حاکم ہیں، محکوم ہیں، آپ شوہر ہیں، بھائی ہیں، آپ کسی بھی حیثیت سے رسول اللہ کو پڑھیں گے تو آپ کے دل میں ان کی محبت اور عظمت، ان کی رفعت شان وہ جاگزی ہوگی، آپ دیکھیں گے۔ رسول اللہ کی سیرت کے مطالعے سے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کو بھی سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ میں آپ کو پہلے بتایا نا کہ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیرت رسول کو بھی محفوظ رکھا ہے، کیونکہ اسی سے ترجمانی ہوتی ہے، قرآن کی تشریح ہوتی ہے، تفسیر ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا اور سیرت رسول کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، گہرا تعلق ہے۔ رسول رحمت کے خصائص اور امتیازات، دوسروں سے رویہ، معاملات، حقوق اور فرائض کا تعین، اس کی صحیح پتہ نہیں کہاں سے ہمارا یہ ٹوٹ گیا تھا ہمارا راستہ، لیکن بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے سیرت رسول کو ہی اپنے لیے مشعل راہ سمجھنا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہوگا، آپ کی شریعت کے بارے میں بھی رہنمائی ہوگی، اخلاق کے بارے میں بھی، تفسیر، حدیث، صداقت، سیاست، عدالت،
दावत, तरबियत, मुआशरत, मुख्तलिफ उमूर ज़िंदगी, उसमें सही और मुस्तनद आपकी जो है वो आपकी मालूमात में इजाफा होगा, मुफीद मालूमात मिलेंगी आपको। सीरत तैयबा और हदीस मुबारका में गहरा ताल्लुक है। सीरत तैयबा के मुताला से सही अहादीस की मारिफत नसीब होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सीरत तैयबा के मुताले से दावत इस्लामिया की तदरीजी हालात, नशेब व फराज के मराहिल से आगाही हासिल होती है और उन मुश्किलात और तकालीफ का पता चलता है जिनसे रसूलुल्लाह और सहाबा कराम को कलमे तैयबा की सरबलंदी के लिए गुजरना पड़ा। उनके साथ साथ ये भी मालूम हो जाता है कि आपने पेश आमदा दुश्वारियों की घाटियां उबूर करने के लिए क्या तरीका हाय कार इख्तियार किया। मुस्लिम और गैर मुस्लिम हर एक शख्स को अगर वो दीन को समझना चाहता है, इस्लाम को समझना चाहता है, तो वो सीरत रसूल के बगैर कभी भी इस्लाम को नहीं समझ सकता। तो मुसलमान भी पढ़े और मुस्तशरिकीन भी पढ़े, गैर मुस्लिम भी पढ़े, ताकि उनको हमारे रसूल की ज़ात गरामी पाक के बारे में मालूमात हासिल हो और सही मालूमात हासिल हो। तो अल्लाह ताला करे कि हम लोग सीरत से मोहब्बत को बढ़ाएं। मैंने आप सबको एक किताब भेजी हुई है ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा मैं आपको भेजता रहा हूँ मुसलसल, और आप उसको पढ़ें, आसान उर्दू में लिखा हुआ है। अगर आप कहेंगे तो वो भी आपको मैं दोबारा भी आपको भेज दूंगा आपके ग्रुपों में, उसको ज़रूर पढ़िएगा। सीरत रसूल की कोई भी किताब आपके पास होनी चाहिए। उन लोगों की सीरत को पढ़िए अहबाब, उन लोगों की किताबों को पढ़ा करें जो इश्क रसूल का दावा करते हैं। जो सिर्फ इत्तिबा रसूल का दावा करते हैं ना, वो ऐसे ही है जैसे हम कानून की इत्तिबा करते हैं। ये बात पता नहीं आपको समझ आएगी या अल्लाह, इन बच्चों सबके दिलों में ये बात जागुजी फरमाया अल्लाह, सबके दिलों में सबको ये बात समझाया अल्लाह। समझो बात को अहबाब कि इत्तिबा और इश्क रसूल में फर्क है, थोड़ी सी मोहब्बत रसूल में फर्क है। समझे इस बात को। जो लोग सिर्फ इत्तिबा 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 की बात करते हैं ना, वो असल में हलावत ईमान से दूर है। वो दीन को समझ ही नहीं सके सिरे से। उनके दिल में कभी वो टकरे मारे, बस नमाजें पढ़ते हैं, दाढ़ियां रखते हैं, वो लोग इसके इस्लाम के ऊपर ऊपर को लेके चल रहे हैं। जो लोग मोहब्बत का दावा करते हैं वो लोग असल लोग हैं, जो सुहाबा कराम के तरीक पर हैं, रास्ते पर हैं। जब आप इत्तिबा करते हैं, इताअत करते हैं, आप ऐसे ही हैं जैसे हम ट्रैफिक पुलिस के इत्तिबा करते हैं, हम अपनी गवर्नमेंट की इत्तिबा करते हैं, हम जर्नेलों और पुलिस वालों और एमएनएस की इत्तिबा करते हैं। हम मानते कि नहीं मानते? हम कानून की पासदारी करते हैं ना। अब ट्रैफिक लाइट पे हम लोग रुक जाते हैं, सिग्नल पे रुक जाते हैं, क्या हमारा दिल करता होता है क्या? ये इत्तिबा है। आप रसूलुल्लाह की बातों को मानते हैं, ये आपके काम आएंगी, आपको हलावत ईमान नसीब नहीं होगा। हलावत ईमान नसीब होता है उन लोगों को जो रसूलुल्लाह के साथ ताल्लुक हुब भी कायम करते हैं। आपके ज़ात के साथ उनकी मोहब्बत होती है, आपके शमाइल के साथ, आपके कपड़ों के साथ उनकी मोहब्बत होती है, आपकी रुखसार के बारे में, आपकी आंखों के बारे में, आपके बालों के बारे में उनको मोहब्बत होती है। सुहाबा कराम को देखे जरा, वो क्या करते थे? वो इत्तिबा करते थे क्या? सिर्फ इत्तिबा करते थे? नहीं, वो तो इश्क रसूल में मस्त थे, वो फना फिर रसूल थे वो सारे के सारे। किसने उनको बताया कि रसूलुल्लाह के बालों को अपने सीने से लगा के रखो? कोई आयत आपने देखी? कोई हदीस मिली है आपको अब तक? कोई हदीस, एक हदीस भी आपको मिली है? कोई आपको कुरान की आयत मिलती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हो? ये सुहाबा कराम का इश्क और मोहब्बत था। ये जायज नहीं था, ये जायज से ऊपर का मामला है, बहुत ऊपर का मामला है। कि वो लोग आपके बाल मुबारक को टोपी में सजाते थे, अपने सीने पे रखते थे, अपने होंठों पे रखते थे, अपने मरते वक्त वसीयत करते थे कि रसूलुल्लाह का जुब्बा मेरे साथ उसकी तदफीन करना, मेरे साथ रसूलुल्लाह के बाल मुबारक जाएंगे, इसी के सदके से मेरी शफाअत होगी। मेरी जिंदगी का खुलासा यही है कि मैंने इश्क रसूल किया है, मैं रसूलुल्लाह पे फिदा हूँ। आपके एक एक बाल को मैंने अपने जान से ज्यादा जाना वो अजीज रखा है। ये है इश्क, इश्क और मोहब्बत के साथ आपकी इत्तिबा करना। सिर्फ इत्तिबा नहीं करते रहना। ये खुश्क होते हैं ये लोग, उनको पता ही नहीं है दीन का, सिरे से नहीं पता। वो सिर्फ जाहिरी पढ़ते हैं किताबों में और लग जाते हैं और समझते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं। वो बदसूरत लोग हैं, बदसूरत लोग हैं जिनके अंदर इश्क रसूल नहीं है, मोहब्बत रसूल नहीं है, अल्लाह के साथ मोहब्बत नहीं है, बस इत्तिबा करना चाहते हैं, इत्तिबा करना चाहते हैं, और इसी को कहते हैं यही दीन कुल है, और यही कुल है, और यही हमसे मकसूद है। मुसलमान से इत्तिबा मकसूद है। भाई आपको पता ही नहीं है इस चीज का कि अल्लाह अल्लाह की मोहब्बत का दर्जा कितना आला है इत्तिबा से। इत्तिबा तो एक जुज बनता है इसका। इश्क मोहब्बत और इश्क और मोहब्बत
جب آپ کسی سے عشق اور محبت کرتے ہیں، اتباع آپ کے اندر خود بخود کوٹ کر آ جاتی ہے، پھر آپ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں، ہر ایک قدم اس کے ساتھ ملا کے چلتے ہیں، اس جیسا بننا چاہتے ہیں، انہی کی طرح داڑھی رکھنا، انہی کی طرح امامہ رکھنا، انہی کی طرح سرما لگانا، انہی کی طرح تیل لگانا، خضاب لگانا، انہی کی طرح کپڑے پہننا، انہی کی طرح عادات کرنا، جیسے عبداللہ بن عمر کرتے تھے، عبداللہ بن عباس کرتے تھے، عبداللہ بن مسعود کیا کرتے تھے، کہ اگر ایک جگہ پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھکے ہیں کسی وجہ سے، اگر کوئی شاخ آ گئی درمیان میں، وہ صحابہ کرام جب بھی وہاں سے گزرتے تھے سر جھکایا کرتے تھے، وہاں شاخ ختم ہو گئی تھی، وہاں کوئی پودا نہیں تھا، لیکن کہتے تھے کہ رسول پاک یہاں جھکتے تھے، ہم بھی جھکتے ہیں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ جہاں بھی آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، آپ نے وہاں اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھی، جہاں سجدہ کیا، جہاں مسکرائے ہیں صحابہ کرام، وہاں بیٹھ کے مسکرائے ہیں۔ کتنے واقعات ہیں، یہ میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ مجھے بڑا اچھا یاد آ گیا کہ رسول اللہ سے صحابہ کرام نے کتنی محبت کی ہے۔ ایک ہمارا لیکچر اس پہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، ایک دن ہم رکھیں گے، اور یہ ابھی انہی دنوں میں رکھیں گے، پہلے 3-4 دن میں رکھیں گے، کہ تعلق آپ کا رسول اللہ کے ساتھ محبت والا ہونا چاہیے۔ اتباع اس کے انڈر آتی ہے، خود بخود آ جائے گی اتباع اور پیروی کرنا۔ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے، یا اللہ سمجھا دے ان کو، کہ اتباع اسی کی اچھی لگتی ہے جس سے تمہارا دلی تعلق ہو، تمہیں جس کے ساتھ عشق ہو، محبت ہو، اس کی ہر ادا سے محبت ہو۔ اتباع اسی کی اچھی لگتی ہے، قبول ہے، مقبول ہے۔ اللہ وہی اتباع قبول کرے گا جس میں رسول اللہ کی معرفت ہو، محبت ہو، وہی قبول کرے گا تم ہم سب سے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں رسول اللہ، ابھی میں آپ کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ رسول اللہ کے حقوق کیا ہیں ہمارے اوپر، اس میں اتباع بھی آتی ہے اور اس کے محبت بھی آتی ہے، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ صحابہ کرام نے کیا کیا، بغیر کسی قرآنی آیت کے، بغیر کسی حدیث کے، کیا انہیں کیا رسول اللہ کی محبت میں، کیا 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 انہوں نے، وہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا میں انشاءاللہ۔ یہ ہمارا یہی موضوع ہے انشاءاللہ، اس پورے مہینے میں یہی ہمارا موضوع رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق وہ عشقی، حبی ہو، محبت والا ہو، اطاعت والا ہو، آپ کی اتباع کرنے والا ہو، وہ سب کے سب جو رسول اللہ چاہتے تھے وہ ہماری آپ کے ساتھ وہی نسبت قائم ہو جائے۔ ہماری نسبت رسول ہونی چاہیے، چونکہ اسی سے ہماری قبر میں بھی خلاصی ہے اور محشر میں بھی خلاصی ہے۔ یاد رکھیں، یاد رکھیں، یاد رکھیں، یہی ہمارا کل ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارا کل ایمان ہے۔ ایک لیکچر ہمارا اس پہ بھی ہوگا کہ دین کا مرکز اور محور وہ رسول اللہ کی ذات گرامی ہے، ایمان کا خلاصہ اور ماخذ وہ رسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ کا گفت ہی قرآن بنا، آپ کا گفت ہی حدیث بنی ہے، آپ کا عمل ہی سیرت بن گئی، آپ کا سب کچھ، آپ کی ادائیں دین ہے، ہمارا دین، ہمارا سارا دین آپ کی ادائیں ہیں، بس آپ کا گفت مبارک ہے، آپ کی چال ڈال ہے، آپ کے خصائل ہیں، آپ کی صفات ہیں۔ تو اس پہ بھی ہم ایک رکھیں گے، آپ کو میں قرآن اور حدیث سے بتاؤں گا کہ یہ کیسے ہے کہ رسول اللہ کی ذات گرامی ہی ہمارا دین ہے، سارا کچھ یہیں سے نکلا ہے، سارا دین یہیں سے آیا ہے ہمارے پاس۔ اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ، ایک ہمارا گفتگو کا موضوع یہ بھی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتاؤں کہ ہمارے رسول وہ افضل المخلوقات ہیں، یعنی تمام مخلوقات سے افضل ہیں۔ اس بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا لیکن نہیں بتا پایا وقت کی کمی کی وجہ سے۔ انشاءاللہ تعالی کل ہمارا اسی موضوع پر انشاءاللہ ہمارا لیکچر ہوگا کہ رسول اللہ افضل المخلوقات ہیں، اور میں آپ کو آیات سے اور احادیث سے آپ کو بتاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل تک ہم حیات رہیں، زندہ رہیں، اور اللہ کرے کہ ہماری زندگی وقف ہو، ہمارے صبح و شام رسول اللہ کی محبت میں گزریں، آپ کی نعتیں پڑھتے، آپ کا ذکر اور فکر کرتے گزر جائے، اور آپ کی زیارت ہمیں خواب میں بھی نصیب ہو، جاگتے میں بھی نصیب ہو، وقت نزع بھی نصیب ہو، آپ کی زیارت قبر میں بھی ہمیں نصیب ہو، اور روز محشر سب سے پہلے آپ کی زیارت نصیب ہو جائے جب ہم جمع ہوں، اور تاکہ قیامت کے تمام ہولناکیوں سے محفوظ ہو کے ہم آپ کے جھنڈے تلے وہاں جمع ہو جائیں اور آپ کے ساتھ رہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں نے ہلکے درود کا اہتمام کیا، ہم نے گوشہ درود شروع کیا، ہم لوگوں نے درود پاک کو پھیلانا شروع کیا، ہم نے اپنی زندگی، ہم نے اپنی باتوں سے غیبت، چغلی کو ختم کرنا چاہا، فضول بکواسات اور جھوٹ کو ہم نے ختم کرنا چاہا، تو ہم نے اس کی جگہ معطر خوشبودار درود کو اپنا لیا ہے۔
اب ہمارے ہاں زبانوں پر درود پاک ہے، صبح و شام جاگتے اٹھتے بیٹھتے، کچن میں کام کرتے، دفتروں میں کام کرتے، ہم درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہی چونکہ رسول پاک کی خوشخبری دی ہمیں، بلکہ ایک لیکچر ہمارا درود شریف کے اوپر بھی ہوگا انشاءاللہ، درود شریف کی فضیلت پہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں رسول پاک نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ درود پڑے گا قیامت میں محشر میں وہ سب سے قریب ہوگا میرے پاس۔ تو ہم بھی یہی اسی تمنا اسی نیت سے درود پاک کو وظیفہ بنائے بیٹھے ہیں کہ ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کا ساتھ رہے، آپ کے ساتھ ہی جنت میں جائیں اور آپ کی خدمت میں معمور ہو جائیں، آپ کی خدمت، آپ کی اولاد کی خدمت، آپ کے اصحاب کی خدمت، آپ کے دین کے رکھوالوں کی خدمت اللہ ہمیں نصیب فرمائے، جنہوں نے بھی اس دین کی خدمت کی ان 1400 صدیوں میں، وہ سب اعلیٰ لوگ تھے، عرفہ لوگ تھے، پاکیزہ لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں میں ان کے ساتھ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں آج ملنا بیٹھنا، یہ صحبت اور یہ ہمارا آج کا درس جو ہم نے شروع کیا، یہ کورس شروع کیا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے ہم سب کے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، ہمارے وہ بیمار جو روحانی بیمار ہیں، ظاہری بیمار ہیں، نفسیاتی بیمار ہیں، ان کے ساتھ کوئی پریشانی ہے، وسوسے ہیں، وہم ہے، اللہ تعالیٰ سب دور فرمائے۔ رسول اللہ کی ذاتی گرامی آپ کے اسم پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مرحومین، ہم سب کے خاندان کے چھوٹے بڑے زنانہ مردانہ جو بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، تمام مرحومین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کا خاتمہ بھی بالایمان فرمائے اس کلمے کے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب دوستوں کا، آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کل پھر 8 بجے دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہوگی تو آپ کسی بھی گروپ میں سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔